Hello and welcome to History classes. This is class 9 SEBA Geography textbook and we are doing chapter number 4 Geography of Assam. Today we will be doing soils, all about soils. So soil is one of the very important element of physical environment or physical geography. It is composed of both organic या फिर live matter and inorganic materials, okay? Not alive materials. Soil is a very essential element for life, of course, because we grow crops there, animals live there, okay? It is also a valuable natural resource. Soils of different types are found in different places on the earth's surface, but soils के different types पाए जाते हैं. हर जगह similar soil नहीं देखने को मिलता है. इसी डिफरेंस की वजह से हमें हर जगह डिफरेंट एनिमल्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डिफरेंट प्लांट्स या फिर वेजिटेशन ग्रो करते हुए दिखते हैं. फर्टाइल सॉइल्स आर स्पेशली सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर. उसमें से जो फर्टाइल सॉइल होते हैं वो ही सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल माने जाते हैं. सॉइल्स आर फॉर्म्ड बाय वेरियस फैक्टर्स. तो अलग अलग फैक्टर्स की वजह से सॉइल क्रिएट होता है, फॉर्म होता है. ठीक है. The principal soil forming factors are parent materials यानी कि rock हो सकता है, climate, organic processes, physiography and time. So इन सब factors को अगर लेके चले, climate भी, time भी, physiography, organic processes और rock material, तो इन weathering होता है rocks का, जिसकी वजह से soil formation होता है, या फिर due to the actions of some natural phenomena or climatic conditions like rain, wind, और टाइम धीरे धीरे होता है, एक बार में नहीं होता है. तो ये सब फैक्टर्स को मिला के सॉइल ओवर द इयर्स, ओवर द बिलियन इयर्स फॉर्म होता है. In the other words, soils are formed due to actions and interactions of these factors. The effects of parent materials, climate, organic processes, physiography and time are clearly seen in the formation of soils of Assam. Due to the effects and actions of these factors, different types of soils in the foothills, plateaus, plains and floodplains. तो ये है typical geography असम का. We see geography of Assam can be summarized in these points. कि असम में foothills भी देखने को मिलता है, hills देखने को मिलता है, plateau भी है, plains भी है और flood plains भी है. तो जिसकी वजह से हमें different types of soils भी देखने को मिलते हैं. तो वो सॉइल्स क्या क्या है, 4 टाइप्स में बांटे गए हैं. वो है एलुवियल सॉइल, पिएडमोंट सॉइल, हिल सॉइल एंड लेटेराइट सॉइल. तो पहले बात करते हैं एलुवियल सॉइल के बारे में. सो एलुवियल सॉइल एक्सटेंसिवली फाउंड किया जाता है इन द प्लेन्स ऑफ ब्रह्मपुत्र एंड बराक वैली. ऑब्वियसली एलुवियल सॉइल या फिर सिल्टी क्ले सॉइल, एकदम याद रखना कि वो नियर द रिवर बैंक्स में ही डिपोजिट होता है, वहीं पे मिल सकता है. तो इसलिए ब्रह्मपुत्र रिवर एंड बराक वैलीज में फाइंड किया जाता है. These soils have formed as a result of deposition of silt and clays carried by these rivers and their tributaries. इसीलिए alluvial soils are generally fertile. तो alluvial soils are excellent for growing crops and because they are very fertile. लेकिन एलुवियल सॉइल्स को भी 2 भागों में बांटा गया है. वो है न्यू एलुवियल सॉइल्स एंड द अदर वन इज ओल्ड एलुवियल सॉइल. द न्यू एलुवियल सॉइल आर मोस्टली फाउंड इन द एक्टिव फ्लड प्लेन्स ऑफ ब्रह्मपुत्र एंड बराक रिवर्स. अगर ब्रह्मपुत्र रिवर के पास रहते हैं, यानी कि एरिया जो है, या फिर बराक रिवर के पास भी, अगर स्पेशली ब्रह्मपुत्र एरिया के बारे में बात करूंगी, अगर आप नियर द बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र जाएंगे तो आप देखेंगे कि ग्रेइश सिल्टी सॉइल देखने को मिलता है नियर द रिवर बैंक. तो दैट इज न्यू एलुवियल, ओके, बिकॉज दैट इज एक्टिव फ्लड प्लेन, वो न्यूली क्रिएट हुआ है. ओके, एंड these soils are moderately deep in gray in color. These are basically composed of sandy to silty loams and slightly acidic in nature. इसका characteristics बता रहे हैं कि soil का जो alluvial soil का, new alluvial soil का characteristic क्या है. On the river banks, these are sometimes neutral or slightly alkaline. These soils are deficient in phosphoric acid, nitrogen and humus. तो इन तीनों में deficient है alluvial soil, but they still have some क्वालिटीज जो कि इसको फर्टाइल बनाता है एलुवियल सॉइल को. तो जो ओल्ड एलुवियल सॉइल है, नाम से ही पता चलता है कि बहुत पहले वो
डिपोजिट हो चुका है, तो वो भी ओल्ड हो चुका है वो। ओके, उसका फॉर्मेशन में, उसका लुक में। दे आर फाउंड स्पेशली इन द रीजन बिटवीन द नॉर्दर्न पियडमेंट जोन ऑफ कोकराझार, बरपेटा, नलबारी, कामरूप, दरंग, सोनितपुर, लखीमपुर, धेमाजी districts and the new alluvial soils of southern bank of Brahmaputra. So let me draw a simple diagram. Suppose this is Brahmaputra river, and let us denote the new alluvial soil with this black color. So ब्रह्मपुत्र रिवर के बैंक में हमें ये न्यू alluvial soil देखने को मिलेगा, जो कि ग्रेइश कलर में है। ठीक है, एक्टिव फ्लड प्लेन में, both in the northern bank and the southern bank. ठीक है, इतना पतला नहीं है, एरिया इज वेरी लार्ज। ओके, बस दिखाने के लिए। एंड सो पियडमल जोन क्या होता है? सपोज ये हिल्स है, हिमालयन हिल्स। तो उसका जो बेस का रीजन जो होता है, हिल्स का फुट हिल्स बोल सकते हैं यहाँ पे, बेस ऑफ द माउंटेन्स और हिल्स, इसको ही बोलते हैं पियडमल जोन। और सपोज so the old alluvial which we are talking about are found between this the piedmont zone, जहाँ पे अलग टाइप का हमें सॉइल देखने को मिलेगा आगे, जिसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पे अलग सॉइल देखने को मिलेगा इस जोन में, पियडमेंट जोन में। और here we have new alluvial soil, so between these two we have the old alluvial soil. Okay, so ये districts के नाम हैं, आप याद कर लीजिएगा। Similarly, these soils are found in the regions of South Bank districts lying between the Southern Hill soil zone and New Alluvial soil zone along the Brahmaputra River. तो Southern Bank districts, ये तो Northern Bank district की बात हो गई, और Old Alluvial का जो जगह है। अगर Southern Bank की बात करें ब्रह्मपुत्र रिवर की, तो ये Southern Hill soil zone जो है, यानी कि नागा, खासी, जैंतिया, बराइल रिज की भी बात कर सकते हैं। तो जो हिल है साउदर्न जोन में, इनके बीचों बीच पाया जाता है यहाँ पे। ओके, so old alluvial soils occur extensively in the plains of Kopili River in Nagaon district. On the other hand, these soils are available in a narrow zone of Barak Plain between the active flood plain of Barak. अगर बराक वैली की बात करें, तो तो असम मिजोरम बॉर्डर में जो हिल्स आते हैं और एक्टिव फ्लड प्लेन जहाँ न्यू एलुवियल सॉइल होगा, उनके बीच में हमें ओल्ड एलुवियल सॉइल देखने को मिलता है बराक वैली में। Generally, the layers of the old alluvial soils are deep and brown in color. Okay, very different from new alluvial soil. They are deep and brown in color, whereas the new alluvial soil was a grayish color. These soils are more or less acidic and composed of fine to coarse loams. ठीक है, पियडमेंट सॉइल्स हमने जस्ट अबाउट अ मिनट अगो वी डिस्कस्ड अबाउट द पियडमेंट जोन, तो वहीं पे ये सॉइल पाया जाता है। ठीक है, along the Himalayan foothills, उस जोन को पियडमेंट जोन बोलते हैं ज्योग्राफिकली। सो वहाँ के सॉइल को पियडमेंट सॉइल्स बोलते हैं। द पियडमेंट जोन कंसिस्ट ऑफ द भाबर एंड द टेराइबल्स। तो दीज आर टू ज्योग्राफिकल टर्म जो कि एक भाबर एंड टेराइबल्स। Let me show you a diagram.
So it's not a very good diagram, but still try to understand it. Okay, so these are suppose hills, Himalayan hills, okay, Himalayan mountain. तो उसके फुट में हमें देखने को मिलता है भाबर. Okay, what I have tried to draw here is the boulders and rocks. ठीक है, जो हिमालयन फुटहिल्स में बहुत पाए जाते हैं. ठीक है, इस एरिया को बोलते हैं भाबर. ठीक. भाबर के थोड़े टाइम बाद ही हमें यहाँ पे एक रीजन देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं तराई रीजन. सब तराई रीजन में क्या होता है कि ये थोड़ा सा मार्शी रीजन होता है. ओके, थोड़ा सा मार्शी रीजन होता है और यहाँ पे थोड़े से टॉल ग्रास उगे हुए देखने को मिलते हैं. सो दिस इज व्हाट भाबर एंड तराई रीजन्स. तो ये हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं. अगर नेपाल, नेपाल का जो ट्रैक है यानी कि उत्तर प्रदेश नेपाल के बॉर्डर में जो ट्रैक आता है वो तराई रीजन है. ठीक है. सो हियर ऑल्सो इन द असम अरुणाचल प्रदेश, आपको पता है कि अरुणाचल के बॉर्डर में हिमालयन, नॉर्थ इंडियन हिमालयन, द ग्रेट हिमालय गुजरता है. ओके, चेन है, उसका रेंज है. तो इसलिए तराई और भाबर बेल्ट भी कुछ अमाउंट में यहाँ पे भी देखने को मिलता है. तो भाबर बेल्ट which extends east-west direction along the Assam-Arunachal Pradesh border formed by series of alluvial faults. So असम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर में भी हमें भाबर देखने को मिलता है. So उसके जो सॉइल है वो बोल्डर्स है, बेसिकली बिग बिग रॉक्स है, पेबल्स, सैंड्स एंड सिल्स. ठीक है. इन एकदम स्ट्रिक्ट टर्म्स, एकदम स्ट्रिक्टेस्ट टर्म में हम इसको सॉइल नहीं बोल सकते हैं. ओके, बिग पीसेस ऑफ रॉक्स एंड ऑल. अगर आपने कभी कुछ ब्लॉग्स देखे होंगे, ट्रैवल ब्लॉग्स देखे होंगे लेह लद्दाख के, या फिर जनरली हिमालयन रीजन के, तो आपने देखा होगा कि बहुत रॉक्स पाए जाते हैं वहाँ पे. ओके, हिल्स के बिसाइड्स में बड़े बड़े रॉक्स हैं एकदम पेबल्स टाइप के, तो वही भांगड़ है. These soils have deep to very deep layers. On the other hand, the soils of Tarai belt occurring just south of the Bhabur belt generally remain saturated with water. ठीक है, marshy area होता है वो. These soils therefore support tall grasses. फिर अभी आते हैं हिल सॉइल्स के बारे में. हिली रीजन में कैसा सॉइल पाया जाता है. सो साउदर्न हिल एरियाज ऑफ असम, साउदर्न में जो हिल एरियाज है, अगर नॉर्थ नॉर्थ की बात करें तो वहाँ पे तो बेसिकली भाबर और तराई रीजन देखने को मिल जाता है. ओके, लेकिन साउदर्न रीजन ऑफ असम में हमें हिल्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे हिल सॉइल्स का रेंज देखने को मिलता है. Fertility of hill soils differs from place to place. Nitrogen and organic materials are abundant in these soils. Based on physical structure and chemical properties, these soils can be divided into two types. तो hill soil को असम के दो टाइप में डिवाइड किया हुआ है. एक है रेड सैंडी सॉइल्स एंड दूसरा है रेड लोमी सॉइल्स. तो ये रेड सैंडी सॉइल असम मेघालय के बॉर्डर रीजन में पाए जाते हैं. ठीक है. और कार्बी प्लेटू, southern part of Bareil range in the North Kachar Hills, और some parts of foothills along the eastern boundary of the Kachar Hills, यानी कि असम मिजोरम बॉर्डर में भी पाए जाते हैं हिल सॉइल्स. बेसिकली जहाँ पे भी हिल होगा साउदर्न रीजन में, बेसिकली वहाँ पे हिल सॉइल हमें देखने को मिलेगा. These soils are formed mainly due to the erosion of rocks and their layers are deep. So rocks कहाँ के, पहाड़ों में जो rocks होते हैं उसके erosion की वजह से ये soils form हुए हैं. These are strongly to moderately acidic with high organic content. On the other hand, the rate ये हो रही थी, हाँ, ये हो रही थी रेड सैंडी सॉइल की बात. और अभी अगर रेड लोमी सॉइल की बात करें तो वो पाया जाता है नैरो बेल्ट ऑन द साउथ ऑफ असम अरुणाचल बॉर्डर में. ठीक है. And Karbi Plateau and also in the southern part of Bareil range in the North Kachar Hill district. These soils also occur in some amount along the Assam-Mizoram border.
These soils are deep and composed of fine to a coarse sand, silt, and clay. These soils are slightly to moderately acidic and this contain nitrogen, phosphoric acid, humus and lime in little amount. तो ये भी आप याद कर सकते हैं कि कौन सी सॉइल का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. Okay? तो जो लेटराइट सॉइल है वो हम देख सकते हैं नॉर्थ कचार हिल्स डिस्ट्रिक्ट में और some part of Karbi Plateau. However, these soils are also available in the eastern border of Hamrin subdivision of Karbi Anglong district, southern border of Golaghat district, and the foothills of Barai ranges in the northern part of Barak plain. Okay, so almost there is not much strict division. So laterite soil हमें गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट और बराइल रेंज के फुटहिल्स में भी देखने को मिलते हैं. ठीक है. Generally, these soils are black in color and their texture is sandy. These soils contain less amount of nitrogen, potash, phosphoric acid, and lime. Soils of Assam generally contain nitrogen and organic materials. The alluvial soils of Brahmaputra and Barak Valley are specially suitable for food crops cultivation. आपने देखा भी होगा. Food production of crops can be increased using organic manure and irrigation. Fertilizer use करके और irrigation use करके alluvial soil में हम क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं. द सॉइल्स ऑफ द अपर ब्रह्मपुत्र वैली आर रिच इन फॉस्फेरिक कंटेंट, याद रखना, एंड ऑल्सो एसिडिक इन नेचर, सो दिस सॉइल्स आर मोस्ट सुइटेबल फॉर टी कल्टीवेशन. तो इसलिए अपर ब्रह्मपुत्र वैली में हमें बहुत सारे टी गार्डन्स देखने को मिलते हैं क्योंकि वहाँ के सॉइल में फॉस्फोरिक कंटेंट बहुत ज्यादा है जो कि टी कल्टीवेशन के लिए बहुत सुइटेबल है. ऑन द अदर हैंड सॉइल्स ऑफ लोअर ब्रह्मपुत्र वैली हैव लो अमाउंट ऑफ फॉस्फोरिक कंटेंट, तो यहाँ पे टी कल्टीवेशन उतना नहीं होता है. वही न्यू एलुवियल सॉइल की बात करें चार एरियाज की, यानी रिवर एंड आइलैंड्स की बात करें तो ब्रह्मपुत्र they are very suitable for growing oil seeds, pulses and rabi crops. The alluviums of the interhill plains favor good cultivation of rice and vegetables. So alluvial soil rice और vegetable के cultivation के लिए भी बहुत बहुत अच्छा माना जाता है. Soils in the hill slopes are favorable for horticulture, यानी कि growing of fruits, flowers, etc. So hill slopes में इसका ज़्यादा cultivation होता है. As in the other regions of India, the soils of Assam are also affected by a number. तो soil की quality जो है वो थोड़ी थोड़ी डिग्रेड होती जा रही है और अदर रीजन ऑफ इंडिया की तरह ही असम में भी सॉइल इज बीन डिग्रेडेड ड्यू टू होस्ट ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से. तो ह्यूमन फैक्टर्स या फिर एंथ्रोपोजेनिक फोर्सेस जहाँ पे ज्यादा एक्ट करने लग जाते हैं, एनवायरमेंट का क्वालिटी वहीं पे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है. तो द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल्स आर डैमेज्ड बाय दिस फैक्टर्स. ठीक है. तो इसलिए सॉइल्स क्या हो जाते हैं, उनका जो प्रॉपर्टीज है, फर्टिलिटी है, वो कम होता जाता है जिसकी वजह से क्रॉप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना या फिर कोई भी वेजिटेशन लगाना वो संभव नहीं हो पाता है, जमीन बंजर हो जाती है. which finally causes soil degradation. Among the physical factors, the important ones are soil erosion on the hill slopes due to natural causes, जैसे कि बारिश की वजह से, और waterlogging problems created on plains and low-lying areas. Either case of soil degradation, presently the human factors are more active than the physical factors. जो natural process होता है वो तो होता ही रहता है, उसकी वजह से soil formation में भी help होती है, नेचर अपना बैलेंस रीसेट करती रहती है. लेकिन जब ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से ये जो रेट है वो ह्यूमन फैक्टर्स इंक्रीज कर देते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है. तो मेजर ह्यूमन फैक्टर्स ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन क्या क्या है? सरफेस सॉइल इरोजन caused by increased surface water flow due to tree felling या फिर डिफॉरेस्टेशन की वजह से. ठीक है. बिकॉज ट्रीज बाइंड द सॉइल टुगेदर, और जब उसको डिफॉरेस्ट कर देते हैं हम या फिर ट्री को काट देते हैं तो सॉइल लूज हो जाता है और बारिश आने से या फिर हवा आने से तेज सॉइल का जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल है जो फर्टाइल होता है वो इरोड हो जाता है. कल्टीवेशन ऑफ लैंड ऑन हिल स्लोप्स इन अनसाइंटिफिक मैनर, अच्छी तरीके से कल्टीवेशन नहीं करने से हिल स्लोप्स में भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है फर्टिलिटी की या फिर सॉइल डिग्रेडेशन की. झूम कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन में क्या होता है, ट्रीज को लार्ज अमाउंट में क्लियर किया जाता है, एरिया को क्लियर किया जाता है, फिर बर्न किया जाता है, फिर उसमें कल्टीवेशन किया जाता है. तो ये खराब माना जाता है सॉइल के लिए.
Waterlogging created as a result of human settlements and other activities. Use of chemical fertilizer extensively. ओके, तो केमिकल फर्टिलाइजर जो क्रॉप को उगाने के लिए मदद करने के लिए बनाया गया है, उसको बहुत ही ज्यादा अमाउंट में यूज करके सॉइल इनफैक्ट अनफर्टाइल हो जाती है, इनफर्टाइल हो जाती है. Soil degradation is a burning problem. Soil are the base of living kingdoms and also a valuable element of physical environment. तो it is a very burning problem और soil का quality degrade होना यानी कि vegetation, trees and हमारे environment को harm करना है. तो because soil support life, okay, various plants and animal species, soils have been playing the vital and essential role in food crop production. ठीक है, so soils are a valuable resource. So all kind of efforts should be made to protect the soil from degradation or for their conservation. So soil को कैसे conserve कर सकते हैं हम? माइंडलेसली पेड़ को नहीं काट के, पेड़ उगाकर, ग्रासेस को उगाकर हम सॉइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, so that was all for today. Thank you and have a nice day. That was all for today. Thank you and have a nice day.